ہیڈ لائنز کے بعد براہ راست آپ کو لے چلیں گے فیصل آباد، جہاں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا 27واں کانووکیشن جاری ہے۔ گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز تقسیم کر رہے ہیں۔ محمد حارث، شمس لیاقت، مصباح عباس بی ایس سی ایگریکلچر، محمد عمران، آمنہ رحمان، عروج فاطمہ، سیرا ریاض، میرا شادمان، نیکا، جی سر، حافظہ ماریہ، رمضان، نمرہ، شہزاد، مریم لطیف، محمد حارث، شمس لیاقت، مصباح عباس، محمد عمران، آمنہ رحمان، عروج فاطمہ، سمیرہ ریاض، میرا شادمان، نیکا منور، ملک منیر، ماجرہ اقبال، کرن فاطمہ ناصر، شیروز شبیر، اسماعیل احمد، رمشا اویس، انیزہ طارق خان، دوبارہ آپ کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد لیے چلتے ہیں، جہاں گورنر بلیغ الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم میں یہی جذبہ اور دعا ہونی چاہیے کہ ہم خیر پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں اور شر کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کریں۔ تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے اور یہی شعور کا تقاضا ہے۔ خیر کی بہت سی قسمیں، دوسروں کو بھلائی پہنچانا، اچھائی کی نیت کرنا، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خود بھی کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں اچھائی پھیلانا ہمارے وجود کا اور ہمارے مقصد کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں برائی سے روکنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ ہمیں شر کو روکنا چاہیے، فساد کو روکنا چاہیے، بد امنی کو روکنا چاہیے اور اس میں اپنے کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کسی کے غلط ارادوں کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں۔ ڈیئر آڈینس، پاکستان کو ایک حقیقی خود انحصاری کی طرف گامزن اور پائیدار ملک بنانے
اور انشاءاللہ مستقبل میں ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میں آپ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ آگے آئیں اور تمام مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے ہاتھ ملائیں. یاد رکھیں، دنیا وہ لوگ چلاتے ہیں جو آگے بڑھ کر چیلنج کو قبول کرتے ہیں، جن میں جرأت ہوتی ہے، جو کریجیس ہوتے ہیں، وہ نہیں جو مناسب حالات کا صرف انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. آج دنیا میں 4th انڈسٹریل ریولوشن برپا ہے. چوتھے صنعتی انقلاب کے دو اہم ترین لوازم ٹیکنالوجی اینڈ کولیبوریشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ہماری سب کی کامیابی ٹیم ورک کے ساتھ رکھی ہے. انسان کو اس طرح بنایا ہے، پرندوں کو، جانوروں کو، ان کو کسی ڈاکٹر کی، کوبلر کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے کچھ عرصہ ماں کے گھونسلے میں ان کو سپورٹ ماں دیتی ہے، دانا چگتے ہیں، اور پھر جب وہ اڑنا سیکھتے ہیں تو پھر اس گھونسلے میں کبھی واپس نہیں آتے. وہ اکیلے تنہا زندگی گزارتے ہیں یا اپنے ایک پارٹنر بناتے ہیں اور پھر لائف آگے چلتے ہیں. لیکن بحیثیت انسان ہم سب اس سوسائٹی میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہ سوسائٹی اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب ہمیں ٹیم ورک کرنا ہے. میں تمام یونیورسٹی کی فیکلٹی کو، اساتذہ کو اور مینجمنٹ کو یہ تاکید کروں گا کہ ایسی چیزیں ڈیزائن کیجیے کہ اپنے طلباء و طالبات میں ٹیم ورک، اکٹھے مل کے چلنا اور اس چیز کا احساس ہونا کہ وی کین اونلی سکسیڈ وین وی کین ورک ٹوگیدر. اگر ٹیم میں کوئی شخص کمزور ہو، پیچھے رہ رہا ہو، تو آپ کبھی کامیاب ہو، ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. ٹیم وہ کامیاب ہوگی جو اس کمزور کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو اور وہ آگے بڑھے. چاہے چھوٹے پروجیکٹس ہوں، چاہے بڑے منصوبے ہوں، چاہے ہماری زندگیاں ہوں، ہم ٹیم میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. So always work, collaborate, work together, team up and collaborate, and inshallah we will always be successful. My dear Vice Chancellor, اس جامعہ زرعیہ نے پچھلے ایک عرصے میں انقلابی ترقی کی جو بے مثال مناظر طے کی ہیں، یہ آپ کی قائدانہ صلاحیت، انتھک کاوش اور اساتذہ کرام اور یونیورسٹی انتظامیہ کی لگن اور محنت کی شاندار مزید ہے. میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کو ایکنالج کرتا ہوں. دوسری جانب جھنگ میں پنجاب سرکار کے مفت راشن کی تقسیم جاری ہے. انتظامیہ کو علاقہ چھوڑ جانے والے افراد کی تصدیق میں مسائل کا سامنا. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں رہ جانے والے افراد انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تفصیلات محمد رمضان سے جانتے ہیں. جی رمضان. جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے مفت راشن کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جھنگ میں بھی گزشتہ روز جو ہے وہ راشن کا افتتاح کیا گیا اور جو رجسٹرڈ خاندان ہیں ان تک جو ہے وہ راشن کی ترسیل جو ہے وہ شروع کی گئی. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جھنگ موجود ہیں، اس سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا راشن تقسیم کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ 2,21,000 سے زائد جو ہیں وہ راشن پیکس ہیں اور بہت بڑی ایکسرسائز ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے اور چیف منسٹر صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ اس بارے میں ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں نے گھر گھر جا کے، دہلیز پر جا کے یہ ڈلیوری کرنی ہے. یہ بہت بڑی ایکسرسائز اس لحاظ سے بھی ہے کہ پہلے ہم نے ویریفیکیشن کرنی ہے، جو ڈیٹا آیا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے کوائفہ میں معلوم ہونے چاہیے، اور دوسرا ان کی دہلیز پہ جا کے ہم نے پیک مٹیریل جو کہ کوالٹی والا ہوگا وہ ہم نے ڈلیور کرنا ہے. اس حوالے سے کل ہم نے پائلٹ لانچ کیا جس میں 55 تھیلے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. آج ہم اس کو اپ سکل کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بتدریج اس کو ہم اپ سکل کرتے جائیں گے اور جلد از جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. فیصد ابھی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی اور وہ عمل آپ کا کر رہا ہے، اس کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا جو ویریفائی نہیں ہو سکیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مسنگ رہ جائیں گے اور وہ رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کس طرح راشن کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی؟ دیکھیے ویریفیکیشن کا پروسیس ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہم ڈلیوری کر دیں لوگوں کو راشن پہنچ جائے تو وہ والی ٹیمیں بھی ہم ان کے اوپر لگا دیں. جی رمضان، شکریہ آپ کا. کمالیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مستحق عوام میں نگہبان پیکج کا افسران کو ٹاسک سونپ دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین نے نگہبان پیکج کی پیکنگ کا جائزہ لیا اور ایس ایچ او سٹی کیسر بھنڈر نے پولیس اہلکاروں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بریفنگ دی. اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین کا کہنا تھا کہ مستحقین کو ان کی دہلیز پر راشن کی تقسیم کی جائے گی. خشک راشن کی کوالٹی اور معیار کو برقرار رکھا جائے گا.
टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज किया। तफसीलात मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन की कॉल पर टोबा टेक्सिंग में भी यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से अलामती एहतजाज किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं अब वो अपने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपका मुतालबा क्या है, क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं? यूनियन की कॉल पे जो है ना वो अलामती एहतजाज हमारा जारी है। हमारे मुतालबात ये हैं कि 3 जून में जो सैलरी इंक्रीज़ हुई थी हमारे अभी तक उसमें कोई नहीं, सैलरी में नहीं इंक्रीज़ नहीं की गई, तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, बिलाशुबा आपकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए, क्या परेशानी होती है आपको? सारी परेशानियाँ, बिल इतना ज़्यादा आता है, बाकी बच्चों की फीसें हैं, बाकी मामला आते हैं, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर, आप बताइएगा, आप भी यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिम हैं, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी, जो हमारे यूनियन लीडरान हैं उनकी कॉल पे हमने ये अलामती जो हमारी हड़ताल है, स्ट्राइक है, ये हमने भी कर दी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते। तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, क्या बात सामने आ रही है? इस पे ज़ाहिर बात है जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो देखो 2023 में जो हमारी सैलरी बजट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो इंक्रीज़ की थी, ठीक है ना, वो अभी तक हमें नहीं दी गई। तो अब महंगाई आप भी जानते हैं महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, तो बच्चों की फीसें हैं, बाकी अखराजात हैं और हम आउट ऑफ स्टेशन जाके ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये सारे अखराजात अगर मिलाएं तो जो हमारी मौजूदा सैलरी है, ये हमारी सैलरी जो है ना ये वो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमारे परेशान है। मुबशर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डाइज एंड केमिकल्स के कारोबार से वाबस्ता ताजर परेशान। दरामदी पाबंदियां और बिजली के भारी बिल डाइज केमिकल्स के लिए वबाले जान बन गए। तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद बिलाल डोगर से जानते हैं। जी अजी, अगर बात करें डाइज एंड केमिकल की तो सबसे ज्यादा अहम खाम माल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी ताहाल अभी भी दरामदी मसाइल एक तरफ हैं, जबकि महंगी होने वाली बिजली ने यहां भी जो ताजर है उनको परेशान कर दिया है। चेयरमैन डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप मियां जाहिद अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियां साहब, क्या मसाइल हैं? पहले क्या दरामदी मसाइल खत्म हो गए क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है तजारती का सारा कम हो रहा है, दूसरा बिजली इंपैक्ट कर रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बिजली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है, जैसे एक आम आदमी पे भी बिजली का बहुत असर पड़ रहा है, इसी तरह जो हमारे दोस्त मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनकी कास्ट बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो परेशान है और आए रोज़ उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने जो बिजली यूज़ कर ली है उसका बिल हमें किस हिसाब से आना है। और ये सिलसिला तकरीबन कुछ 2 साल से जारी है और अभी कंटिन्यूटी है उसमें, क्योंकि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का IMF से ऐसा मुआहदा है कि बिजली के रेट कम होने के कोई चांसेस नहीं है। उस वजह से बिल्कुल हमारा ताजर तबका इंतहाई परेशान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में सैकड़ों सनती सारिफीन महकमा सुई गैस के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद डिवीजन में सैकड़ों की तादाद में जो कैप्टिव पावर प्लांट या सनतों के मालिकान हैं वो SNGPL के करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ कारखानों की जानिब से अपने कैप्टिव पावर प्लांट लगाए गए जिन पर गैस इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती थी। इन मालिकान की जानिब से या इन शहरियों की जानिब से बिजली बनाई गई इस गैस के इस्तेमाल से और इसका इस्तेमाल भी किया गया, मगर इसके बरक्स जो उनके वाजिबात थे वो मुकम्मल तौर पर SNGPL को अदा नहीं किए जा सके और करोड़ों रुपए जो है वो अब भी इन कैप्टिव पावर प्लांट्स के मालिकान की तरफ SNGPL के वाजिबुल अदा है। ताहम इसे उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग इंतजामिया की नाअहली या मामला कुछ और। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन और एकोकार्डियोग्राफी मशीन खराब है। बात करेंगे वसीम मजीद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो इकोकार्डियोग्राफी मशीन है वो और इसी के साथ CT स्कैन मशीन की खराबी के बाइस मरीज जो है वो मुश्किलात का शिकार है। मेरे साथ MS डॉक्टर सदफ नकवी साहिबा मौजूद है। मैडम साहिबा बताइएगा, इको मशीन जो है वो अरसा दराज से ख़राब है, इसी के साथ CT स्कैन मशीन का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, CT स्कैन मशीन की मेंटेनेंस हो रही है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है आज से कल में मुकम्मल हो जाएगी, दोबारा से फंक्शनल मशीन हो जाएगी। और जो इको मशीन के लिए उसके लिए भी हमने कह दिया है वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में रिप्लेस हो जाएगी या रिपेयर हो जाएगी।
यही कहना है कि बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में शुगर के मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सके, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसुलिन खत्म हुए 1 माह हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जो नई हुकूमत को भी ओहदा संभाले तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है और पिछले 1 माह से जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इंसुलिन जो है वो नायाब है। इंसुलिन ना होने की वजह से जो दूर दराज से आने वाले जो मरीज़ हैं वो जहनी कोफ्त के साथ साथ अब जो है वो शदीद परेशान है, डिप्रेशन का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जहनी अजियत में मुब्तला है कि इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से चक्कर लगा रहे हैं, इंसुलिन नहीं मिल रही? तकरीबन 5-6 चक्कर हो गए हमारे, इंसुलिन हमें नहीं मिल रही है और अब ये हमें बाहर से लेनी बहुत मुश्किल हो चुकी है क्योंकि उसकी परचेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें मिल नहीं सकती, ना हम यूज़ कर सकते हैं। तो नई हुकूमत को बने हुए अब 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, तो नई हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे और हमें इंसुलिन देने का मुतालबा दें। शहरी मुतालबा। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रह चुनाव पर चिन्योट के मुकाम पर तामीर होने वाला डैम ताहाल उसका आगाज न हो सका। चिन्योट डैम की फिजिबिलिटी स्टडी 2019 में मुकम्मल हुई। मंसूबा अभी तक क्यों शुरू नहीं हो सका, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चिन्योट में एक छोटा डैम बनाया जाना था जिससे 80 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी और इस मंसूबे की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो 2019 में मुकम्मल हो गई थी, जबकि जून 2022 में इस पर काम शुरू होना था और दिसंबर 2023 में ये डैम अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इस डैम पर काम ही शुरू नहीं हो सका। वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत की जानिब से और जो डोनर एजेंसीज हैं उनकी जानिब से फंड्स रिलीज़ नहीं हो सके, जिसकी वजह से इस पर काम शुरू नहीं हुआ। ये डैम बनने की वजह से चिन्योट में दरियाई चिनाब के मुकाम पर 9 मिलियन एकड़ फीट पानी की कैपेसिटी होनी थी और 80 मेगावाट बिजली फैसलाबाद डिवीजन और दीगर जो अजला हैं, करीबी अजला, यहाँ की जो बिजली की ज़रूरियात है वो पूरी होनी थी। इसकी अगर हम कास्ट की बात करें तो PC2 कास्ट 533 मिलियन से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि 50 मिलियन हुकूमत ने और 96 मिलियन के फंड्स वापडा ने देने थे। ताहम फंड्स रिलीज ना होने की वजह से ये मंसूबा अभी तक शुरू ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो बिजली की ज़रूरियात हैं फैसलाबाद डिवीजन और दीगर जो करीबी अजला है। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं कि जंग में जजेस की कमी है। सेशन और सिविल अदालतों में केसेस की भरमार। जिले में 11 एडिशनल सेशन जज और 20 सिविल जजेस की सीटें खाली हैं। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, जंग में हमें जुडिशल अफसरान की जो कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पास जो है केसेस की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि उनके फैसलों में ताखीर का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सेशन एडवोकेट हैं सरदार तैमूर अब्बास मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना इफेक्ट करता है जजेस की कमी जो है वो केसेस के बाद? ये मैं अगर सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जंग की बात करूं तो यहाँ पे मोर देन 50% जो जुडिशरी की सीट्स हैं वो वैकेंट पड़ी हैं, जिसमें जो है वो सिविल कोर्ट्स में 20 जजेस जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो वैकेंट हैं, कोर्ट्स जो हैं, और इसमें जो है वो अब ये देख लेंगे 50% नहीं है तो वही जो बर्डन है वही जो है वो रिमेनिंग जो 50% जो वर्किंग कर रहे हैं सिविल जजेस हैं उन पे पड़ जाता है। तो वो एक जज के पास अगर आप जाएं तो मोर देन 100 की जो है वो पेशी होती है। अब देख लें कि उस टाइम में वो कैसे एक जज है वो मैनेज कर सकता है कि वो मोर देन 100 केसेज जो है या 150 केसेज जो है उनको जो है वो सुने, फिर उन पे डिसाइड भी करे, डिसीजन भी करे। इसके लिए जो है वो इसी तरह ही अगर देखा जाए एडिशनल सेशन जज की जो है वो अराउंड अबाउट 11 सीट्स जो है वो वैकेंट है। तो अब ये कैसे मैनेज हो सकता है? वजह कि है कचहरी वो भी बहुत शॉर्ट है, इस वजह से भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही होगी। तमाम इजला में या पंजाब में तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। भवाना एक तहसील है तो वहां पे बना जिसका कोई जिस जहां पे बन सका, जो डिसीजन है वो यही है कि वो कैसे वो काम सुबह से लेकर 9 से 4 कर। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक की आमद, हाईकोर्ट के अहकामात पर अदालती औकातकार में तब्दीली। जंग में सेशन और सिविल अदालतों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक समाअत होगी। जुमा के रोज अदालतें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक केसेस सुनेंगी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की जानिब से सेशन जजेस को मरासला जारी कर दिया गया।
नुसरत अली शाह ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जड़ावाला का चार्ज संभाल लिया। जड़ावाला में सेक्रेटरी मार्केट की सीट अरसा दराज से खाली थी। नुसरत अली शाह ने चार्ज संभालने के बाद काम का बाकायदा आगाज कर दिया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में जायदाद के तनाज़े पर सुतेला बाप कत्ल। दयालगढ़ में मुलजिम बिलाल का सुतेले वालिद पर परवेज से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम ने तल्ख कलामी पर छुरी के वार करके परवेज को शदीद जख्मी कर दिया। परवेज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सका।